So good morning everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to start your new topic, or I can say last topic of chapter number 8, that is compound interest. Now before starting compound interest, first let us analyze what is interest and how many parts of interest we are having. Yes. So many students have given me answer in the chat box about simple interest. Very good students. But first of all, before going to simple interest, if I want to ask you what do you mean by interest, just you have to tell me in your words. Anyone tell me? Okay. So ये इंटरेस्ट क्या है, मतलब कहाँ यूज होता है, कब काम आता है, कौन मुझे बताएगा? व्हाट डू यू नो बाय इंटरेस्ट? एनीवन रेज योर हैंड। जस्ट आपको सिंपल सी आसान सी भाषा में आपके बारे में बताना है, दैट्स इट। ओके, Shivansh is telling extra amount paid annually. Okay. Sir, when we take loans by Samarth, yes. Safwan, simple interest is a quick and easy. Just a minute. Safwan is telling simple interest is a quick and easy method of calculating the interest charge on loan. Okay. So Safwan is also suggesting for loan when we, Madhusudan is taking when we take loan. Okay. So according to all of you guys, whenever we are taking loan, yes, Sanket is also telling when we are borrowing money. Others is telling amount of extra money to be given when borrowing loan, right? Agree. So interest will come in the picture when you are taking loan only or any other time as well. It is a medium of income for bank, definitely. It is only medium. It is only medium of income for bank. Bank is earning money due to this loan only. Okay. So any other where have you heard interest? Only on if I'm taking loan from bank, at that time only just I have to pay interest, or bank is also giving interest on any other money. Yes, Sivansh is telling EMI installments. Yes, installment is nothing, but you are paying your installments every month, right? EMI, every month installments. Okay. So it is basically your loan plus interest, whatever you have to pay. See here, students, your interest will come into picture whenever either you are keeping your money in bank or you are borrowing that. If you keep your money in bank or somewhere else, they are going to give you interest on that as well or not? Yes or no? They will tell you that on savings account, have you heard that we are giving 3% interest? Right. On do here fixed deposit, we will give you 6% interest. If you fix deposit certain amount for, they will tell you that if you deposit this much amount for 2 years, we will give you 6%. For 1 year, we will give you 4%. For 3 years, again, we will give you 4%. These are the different schemes available in the bank. Do you know this? Isn't it? So these are the different bank schemes and everything which is available in the bank. So, okay. So when, if you take loan, even not only bank, there are so many different financial firms, small financial firms, there also you can do this thing. Okay. So you are having two different options whenever either you deposit money in your bank or you take loan from bank. Yes, loan is anything, right? Loan you can take, yes, when buying a car, Safan is telling. So now they are giving vehicle loan, home loan, personal loan, everything. They'll give you loan on each and everything. So bank, whenever you will deposit your money or borrow money for any purpose, and that borrowing money is nothing but in our terms it is called loan. So when you deposit your money, students, at that time they will give you some interest on it. Okay, you will receive deposited money, which is nothing but our principal, plus any interest on it, which will be your amount.
Are you getting my point? Principal plus interest is equal to amount. Principal is nothing but deposited money. Why I am telling that deposited? Because आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपने कितना मनी डिपॉजिट किया उस पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? अगर आपने ज्यादा मनी डिपॉजिट किया आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने कम मनी डिपॉजिट किया आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री विद दिस, हाँ या ना? राइट. इन अ सेम वे जब आप मनी बोरो कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो, तो उसी लोन को मैं प्रिंसिपल बोलूंगा. नाउ यू हैव टू पे principal plus interest equal to amount. You have to pay principal plus interest equal to amount because you have to pay something interest on this principal, whatever loan you have taken. Is it clear, everyone? Right. You might have heard so many places that many persons are in tension, many people are in tension that अरे इतना लोन हो गया है, ये पे करना है, हर मंथ सारा पैसा EMI में चला जाता है. Okay. Yes. Mostly farmers. You heard from farmers? Tell me, everyone. बेचारे फार्मर्स अभी देखते हैं सब है. फार्मर्स नहीं, सभी जगह. मैंने इवन एजुकेशन लोन्स आर देयर. फ्रेंड्स हैं, इवन मैंने भी लिया था. तो एजुकेशन लोन आप लेते हैं, फिर जब आप पढ़ाते हैं, मतलब जब भी आप जॉब करते हैं, तो आपके जो पैसे आते हैं उसमें से कई कई सारा अमाउंट आपको बस वो एजुकेशन लोन पे करने में चला जाता है. ओके. इन सभी जगह पे इंटरेस्ट हाई है. सो बैंक, हाउ बैंक विल अर्न? वो जो भी लोन से इंटरेस्ट लेती है स्टूडेंट्स वो ज्यादा लेती है, राइट? ऑन लोन दे विल टेक 7% इंटरेस्ट एंड ऑन सेविंग्स अकाउंट दे विल गिव यू 3% इंटरेस्ट. सो डिफरेंस बिटवीन दिस 7 and 3 is 4% or not? From this 4% they are running all over their business. उसी में से सबकी सैलरी आती है और सारी चीजें होती है. Okay, so this is about a little bit for of business of bank. अब इंटरेस्ट आपके दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स. एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हो? कोई कुछ बोल नहीं रहा. यस. सिंपल इंटरेस्ट कब पढ़े थे? क्लास 7. प्रोबेबिलिटी भी आप पढ़े थे क्या क्लास 7 में? यस सर. यस, ग्रेट. सो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? ना व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? वो टाइम पे आपको बोला गया था कि उसको सिंपल क्यों बोलते हैं? किसी ने आपको समझाया था उसे सिंपल क्यों बोलते हैं? नो सर. Sir, it is quick and easy method of calculating. Okay. So, Sanket is telling quick and easy method of calculating. Same with Safwan. वो exactly simple interest find करने की जो method है, yes, that's why it is called simple. Exactly तब आपको वो simple क्यों बोला गया? क्योंकि कंपाउंड आपने पढ़ा नहीं था, राइट? इवन कई लोगों को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना भी टफ लग रहा होगा कि सर अरे ये भी कितना टफ है, बट वो आसान है, हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100. जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्यों उसे सिंपल बोला जाता है, क्यों वो मेथड क्विक और इजी है, और क्यों कंपाउंड वाली मेथड डिफिकल्ट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. इज इट क्लियर? चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. आपको ये सबको ये फॉर्मूला पता है? सिंपल इंटरेस्ट इज PTR by 100. Definitely simple interest is your compounded annually, where P is your principal amount, or you can say only principal. T is equal to time period. चलो ये time period आप क्या मंथ में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं, डेज में ले सकते हैं. You have to take only in years. Okay, time period in years, क्योंकि वो आपका compounded annual, not compounded annually but annually count होता है. R is rate of interest per annum.
आर आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, पर एनम मींस, टेल मी, एक ईयर का, हाँ या ना? पर एनम दैट मींस फॉर 1 ईयर। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो परसेंटेज में आएगा, राइट? एनम मींस ईयर, ये सबको पता है। जो हम बोलते हैं एनुअली तो वो ईयरली, एंड 100 तो 100 है। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीटीआर बाय 100। इसके आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट? चलो अब मैं एक छोटा केस ले रहा हूं जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे 3 साल के लिए। whenever your time will take for first 1 ईयर के लिए सेपरेट, सेकंड ईयर के लिए सेपरेट, थर्ड ईयर के लिए सेपरेट, 1 ईयर के लिए सेपरेट, सेकंड ईयर के लिए सेपरेट, थर्ड ईयर के लिए सेपरेट। नेक्स्ट मैं प्रिंसिपल लूंगा स्टूडेंट्स 100 रुपीज ओनली। ओके, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान रहे। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रखूंगा दोनों के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई विल टेक रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10% पर एनम। ओके, वो 10% पर एनम होगा। नाउ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा, और यहाँ पे जो मुझे अमाउंट मिल रहा है वो मैं फाइंड करूंगा। और इन दोनों से जो भी डिफरेंस होंगे वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें मैं सारी चीजें लिखता जाऊंगा। Okay, so are you ready to see difference of this, everyone? Okay. If you agree, you can tell me yes, right? जानना चाहते हो डिफरेंस क्या है? स्कूल में तो नहीं चला होगा ना अभी तक चैप्टर ये? ओके, चलो समझो। अगर अभी आपने समझ लिया तो स्कूल में आप बहुत आगे बढ़ोगे, राइट? अभी नहीं समझ पाए तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। कतर बैच में ये चैप्टर मैंने लास्ट वीक ही खत्म किया है, राइट? एंड वो जब उनके स्कूल में चल रहा था तो उनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पे पढ़े तो उनके लिए वो काफी आसान बन चुका था। Yes. Now Shivansh is asking, sir, bank take which type of interest? बैंक में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, राइट? क्योंकि अभी सिंपल इंटरेस्ट सभी जगह से निकल ही गया है। एवरीवेयर यू आर हैविंग कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली। वो लोन पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए पैसा बहुत बढ़ जाता है। एंड वो आपके जो आप पैसा रखते हो उस पर भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। ओके, चलो अब जो मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि कतर वाले बेचिस को जब मैं ये पहले समझा रहा था तब वो ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे सर आप डायरेक्ट हमें फॉर्मूला दे दो, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी चल गया ना तो उन्हें फॉर्मूला पता थी। बोले सर हमें डायरेक्ट का फॉर्मूला दे दो हम कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, तो उनको मैंने फॉर्मूला दे दी, फिर अटक गए। फिर जैसे वो क्वेश्चन स्टार्ट करना आया ना तो नॉर्मल फॉर्मूला वाले हो गए, फिर जैसे क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया उनका दिमाग खराब, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। तो उन्हें मैंने बोला जब समझा रहा था तब आप समझे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? फिर सारी चीजें वापस समझाई, तो एक ही चीज समझाने के लिए डबल डबल क्लास गए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी बराबर ध्यान देना। एंड कतर बैच वाले रिकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी के रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैंने अपडेट कर दिए गूगल क्लासरूम में, देखा आपने? ओके, तो जब भी अगर आप स्कूल से कोई एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल हो गया या एक्सरसाइज हो गया, उसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप वहां के रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके, चलो अब समझो यहाँ पे। चलो प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज है, इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना होगा एवरीवन? 100 रुपीज पे इंटरेस्ट कितना होगा? 10 रुपीज, हाँ या ना? 100 रुपीज में इंटरेस्ट कितना होगा? 10। अमाउंट आपको कितना हो जाएगा? 110। ओके,
अब सिंपल इंटरेस्ट का केस समझो, बैंक में आपने 100 रुपए रखे हैं, 10 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, आपका अमाउंट हो गया 1110। अभी आपके बैंक में कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स? 110। बट सिंपल इंटरेस्ट का केस क्यों सिंपल है? क्योंकि हर बार इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल काउंट होता है वो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल ही काउंट होता है। अगर स्टार्टिंग में आपने 100 रुपए रखे थे तो 100 रुपए पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 110 रुपए में जो आपको स्टार्टिंग में 10 रुपए मिल गए वो एज इट इज रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 110 रुपए पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर, 100 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट में आप कितने भी ईयर तक रख रहे हो आपको इंटरेस्ट सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिलेगा। सो यहाँ पे हम उसका डिफरेंस लिखते जाएंगे, राइट। और अभी जो जो डिफरेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा। समझना, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये टेबल आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। ओके, सी है। सो 100, 10, 110, अभी आपका 100 है। सो प्रिंसिपल remains same for every year। हर साल आपका प्रिंसिपल सेम रहेगा। अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हो तो 3 साल, 4 साल के लिए कर रहे हो तो 4 साल। तो अगर प्रिंसिपल सेम है, मैंने अभी आप स्टार्टिंग में बोला इंटरेस्ट आपका किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल पे, हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। इधर आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ परसेंट, रेट इक्वल टू 10% पर एनम है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाई 100। चलो इसे यहाँ पे नीचे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाई 100। हर साल का आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल इज 100 रुपीज। एक साल के लिए आपको फाइंड करना है 10% पर एनम डिवाइड बाई 100। योर सिंपल इंटरेस्ट विल बी 10 रुपीज। टेल मी, हर साल आपका सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज हो जाएगा एवरीवन? ओके, हर साल के लिए फाइंड कर रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग फॉर ईच एंड एवरी ईयर। सो ये 110। अब आपका अगेन कितना हो जाएगा? अब समझना, ये इंटरेस्ट आपका 10 हो गया, बट बैंक में आपका पैसा, पहले बैंक में कितना पैसा हुआ है आपका? 110 ऑलरेडी था ना, 110 ऑलरेडी आपका बैंक में पैसा है, राइट। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 110 रुपए ऑलरेडी आपके बैंक में थे। 110 में आप ये जब 10 ऐड करोगे, अब आपके पास बैंक में कितने पैसे हो जाएंगे? 120 रुपीज। ये चीज पता चली? क्योंकि पहले 110 रुपए तो हो गए थे ना, बाकी का 10 रुपए इंटरेस्ट आपको मिला 100 रुपए पे, राइट। 110 ऑलरेडी हो गया था, 10 रुपीज आपको मिला यहाँ पे। यस, चलो नेक्स्ट अगेन थर्ड ईयर में आपको अगेन मिलेगा 10 रुपीज। तो अब 120 प्लस 10 आपका हो जाएगा 130। या आप 100 में 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 ऐड कर सकते हैं। तो आप ये 2-3 वे से कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, या 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो 100 में आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। हंड्रेड आपका प्रिंसिपल था ओरिजिनल, उसमें 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 130। राइट, एक साल रखोगे तो 10 रुपए मिलेंगे, 2 साल रखोगे तो 20, 3 साल रखोगे तो 30। इज इट क्लियर एवरीवन? सिंपल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ बैंक का? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री विद दिस, राइट। चलो, और अमाउंट का भी आप फॉर्मूला पढ़े थे। यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, where A is equal to amount at the end of 1 year, 2 year, 3 year, yeah, T years. चलो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझो स्टूडेंट्स। कंपाउंड का मतलब क्या है? ये ना वर्ल्ड का 8 वंडर है। आपको पता है दुनिया में 7 अजायबी है, राइट, 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड। क्यों इसको 8 वंडर बोला जाता है समझो। सपोज आपका प्रिंसिपल 100 है, समझो समझो, वेट राइट। उसमें अगर इंटरेस्ट पहले साल तो आपको 10 ही मिलेगा, राइट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो पहले साल के लिए तो ये आपको 100 इंटू 1 इंटू 10 बाई 100, सो इट विल बी 10 ओनली। सो योर अमाउंट विल बी 110। अब जैसा मैंने आपको बोला कि प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है फॉर सिंपल इंटरेस्ट, बट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर will be principal for
करंट ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर ये एग्जैक्टली मैं अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अलग अलग टाइप होते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, बट वो बाद में देखेंगे। जब मैं कंपाउंडेड एनुअली दिखाऊंगा तब मैं आपको बोलूंगा ये जो एग्जैक्टली हम केस देख रहे हैं ये कंपाउंडेड एनुअली का है। ओके, तो वो टाइम पे मैं वापस समझाऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझो। तो अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर विल बी प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर। वेट साफवान रिलैक्स, आपने जो लिखा है वो गलत है, सही है। अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर क्या है? 110, वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। डिफरेंस पता चल रहा है? नहीं, डिफरेंस को लेट मी राइट विथ येलो, ये आपका 110 हो जाएगा। अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? ओके, प्रीवियस केस में क्या था? 100 का 100 ही रहता था, अभी आपका 110 हो जाएगा। चलो अब 110 पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ये पहले साल का इंटरेस्ट था तो मैं इसे SI1 नाम दे रहा हूं। दूसरे साल का इंटरेस्ट SI2 PTR by 100। व्हाट इज योर प्रिंसिपल? 110। व्हाट इज टर्म? 1 ईयर। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ साफान, क्या गलत है आपका? सी, मैं सेकंड ईयर के लिए फाइन कर रहा हूं तो पूरा तो एक ही साल है ना। अगर मैं T = 2 रखूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा? वो 2 साल का हो जाएगा। नाउ शिवांश इज आस्किंग व्हाई वी आर टेकिंग SI। SI इज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं अभी आपको पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है वो बता रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रिंसिपल इन सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम एंड प्रिंसिपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी योर अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर। फिर सेम सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट है। ओके, so 110 into 1 into 10 divided by 100, 2 zeros cancel. What will be your interest now? 11 रुपीज। अब मैं अगर इधर 11 रुपीज ऐड कर रहा हूं, अब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? 121। क्या यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? टेल मी now again. So Nishka is also telling time should be 2. Wait, sir, why the time still 1 year? Tejas is also asking same thing. वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको समझो। सी, टाइम 2 का मतलब क्या है? आप मगअप मत करो कि सेकंड ईयर के लिए कर रहा हूं तो टाइम 2 हो जाएगा, नहीं। आप कितने, सी, अगर टाइम 2 ले रहे हो, अभी तक मैंने आपको टाइम 2 या 3 लेना सिखाया ही नहीं है, वो इसके बाद वाले स्टेप में सिखाऊंगा। टाइम 2 लेने का मतलब ये है कि आप 2 साल के लिए फाइंड कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग फॉर 2 years साइमल्टेनियसली। अगर आप 2 साल के लिए फाइंड कर रहे हो तो आपको टाइम 2 लेना पड़ेगा। टाइम अगर यहाँ पे आप 2 लोगे, 100 into 2 into 10/20, तो वो 20 रुपीज आपको देगा, वो 2 साल का इंटरेस्ट देगा। यहाँ पे हम सेकंड ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं। सेकंड ईयर इज ओनली 1 year itself। सेकंड ईयर इज ओनली 1 year itself। सो इसीलिए मैं उसके लिए फाइंड कर रहा हूँ टाइम फॉर 1 year, दैट इज सेकंड ईयर। मैं फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करूंगा तो भी 1 साल, थर्ड ईयर के लिए फाइंड करूंगा दैट इज ऑल्सो 1 year, फोर्थ ईयर के लिए 1 year, फिफ्थ ईयर के लिए 1 year, सिक्स्थ ईयर के लिए 1 year। हर एक एक ईयर का मैं सेपरेटली फाइंड कर रहा हूं। अभी मैं आपको बस एक साल का समझा रहा हूं, सारे साल का एक साथ नहीं समझा रहा हूं। इज इट क्लियर? निष्का, क्या क्लियर हुआ? 1 year वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? ओके, चलो समझो अब यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ थर्ड, लेट मी राइट विथ अनदर कलर। चलो अब थर्ड ईयर के लिए स्टूडेंट्स प्रिंसिपल कितना होगा? अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर विल बी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर और नॉट? यस और नो? ओके, थर्ड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 121। चलो थर्ड ईयर के लिए अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ओके, ये पहले साल के लिए थे इसलिए मैंने उसको व्हाइट कलर से लिखा, SI1। नाउ लेट अस फाइंड फॉर थर्ड ईयर SI3 is equal to PTR by 100. Principal is 121. T is 1 year. Again, अब ये पता चला मैं 1 क्यों रख रहा हूं यहाँ पे, क्यों 3 नहीं रख रहा हूं? Why I am not putting 3 here? This is 12.1. Okay, so if I add here 12.1 rupees, what I'll get? 0.1, 2 plus 1, 3, 3, 133.1 rupees. Are you getting my point, everyone? Yes, Sanvi? Sanvi, are having any doubt?
No, sir. ओके ओके, तो पहले सिर्फ इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या ये थोड़ी चीजें क्लियर हुई? ओके, अब मैं इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या सेम है। तो पहला डिफरेंस आपका ये है कि प्रिंसिपल यहाँ पे सेम रहता है, और इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल आपका हर साल चेंज होता है। ओके, चलो अब आप मुझे बताओ किसमें आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में या कंपाउंड इंटरेस्ट में? फॉर फर्स्ट ईयर योर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम और नॉट? If it is compounded annually, for first year, simple interest and compound interest are same. If it is compounded annually, okay. Yes, अगर sir. compounded annually है तो, okay. फिर सेकंड ईयर से देखो, क्या सेकंड ईयर में आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से? ओके, हाँ, अपूर्वा इज आस्किंग क्या एग्जाम में ईच चैप्टर आएगा? यस, एग्जाम में ईच चैप्टर आएगा। ओके, इसलिए ध्यान दो अच्छे से। तो 120 और इधर 121, आप बोलोगे सर 1 रुपए तो ज्यादा मिल रहा है, 1 रुपए में क्या है? ये 1 रुपया ज्यादा आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने सिर्फ 100 रुपए रखे थे, बैंक में 100 रुपए कोई नहीं रखता। आपने सोचो अगर आपने 1 लाख रुपए रखे होते तो यहाँ पे आपको कितना मिलता? 1,21,000, दिस 1,000 एक्स्ट्रा फॉर 1 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अगर 1 लाख रखे होते तो ये आपके 1,30,000 होते, ये आपके होते 1,33,000, जो आपके 3,000 एक्स्ट्रा है, जिससे आपका स्टेशनरी का और सारा खर्चा निकल जाएगा 1 साल का सिर्फ इंटरेस्ट से। ओके, so it depends on the what value of principal that you have deposited in the bank. चल, तो प्रिंसिपल आपका सेम हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर, let me write here, for first year simple interest is equal to compound interest if it is compounded annually, and for remaining years your compound interest is always greater than simple interest or not. इसलिए ये 8 वंडर बोला जाता है स्टूडेंट्स, जब आपका टाइम पीरियड ज्यादा होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आपने कई जगह पे ये स्कीम्स भी देखी होगी कि आप बैंक में या कोई अलग फाइनेंशियल फर्म में अगर इतने पैसे रखेंगे 8 साल के लिए तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। क्या ऐसे स्कीम्स देखी आपने? राइट, इतने साल में पैसे डबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉड थिंग्स, बट प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, हाँ, कि भाई वो कैसे हो जाता है? यस, हेल्थ इंश्योरेंस इज डिफरेंट थिंग, ओके, बट उसमें भी ये काम आता है। फॉर ऑल अदर ईयर्स एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर your simple interest will be less than compound interest, your compound interest will be more. ओके, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना हो जाता है, इतना बढ़ बढ़ के राइट, कि वो आपका डबल ट्रिपल हो जाता है। आपने LICs और वो सारी चीजें पढ़ी होंगी राइट, और मैं इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में समझा सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना इनफ है, तो फिर हमें एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं। नाउ अपूर्वा इज आस्किंग हाउ डू दे गेट मनी टू डबल? अपूर्वा यहीं से इंटरेस्ट से। ओके, ये जो आपका इंटरेस्ट होता जाता है ना, इसी को आप अगर आगे आगे ऐड करते जाओगे ना, तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें आपके 100 रुपीज 200 रुपीज हो जाएंगे। ओके, और वो ज्यादा होता है, इट इज नॉट सिंपल 1 2 3 ईयर्स, वो 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स ऐसा टाइम होता है, 20 साल में वो डबल होता है। ओके, फॉर ऑल अदर ईयर्स एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर, ये आपका हो गया। नाउ अब मुझे ये बताओ, अगर आपको सारे साल के लिए फाइंड करना है कंबाइनली, ओके, अगर आपको 1 साल के लिए फाइंड नहीं करना है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 साल के लिए फाइंड किया सिंपल इंटरेस्ट PTR by 100, ओके। नाउ साफवान इज आस्किंग सर फ्रॉम वेयर डज द बैंक गेट मनी टू डबल आवर मनी? बैंक के मनी डबल कैसे होते हैं? यहाँ में मैंने बोला ना, वो 8-10 साल में डबल होते हैं। सोचो 8-10 साल में वो लोन से कितना इंटरेस्ट कमाएंगे? they are earning money from interest from loan and they are giving money towards your principals. Are you getting my point? लोन पे वो लोग लेते हैं 10%, सपोज यहाँ आपको देते हैं ओनली 3%, सो 7% इज देयर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। डेफिनेटली
ये आपकी डिफरेंस वेरी करेंगे अगर ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी उसमें बहुत टाइम है, अभी सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली पे फोकस करें। तो और अच्छा है ना शिवांश, क्योंकि बैंक के बहुत सारे ब्रांच होती है ना। अब मान लो आपके यहाँ तोरना गल्लू में ब्रांच है, तो हमारे जो विद्यानगर टाउनशिप में ब्रांच है, वहां से लोन बहुत कम लोग लेंगे, होम लोन तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब यहाँ पे टाउनशिप में सबको घर मिलता है, रेंट पे रहते हैं, ये सर नो, होम लोन यहाँ से कोई नहीं लेगा। बट यहाँ पे सबका सैलरी अकाउंट है, तो सबके पैसे इधर आते हैं। अब वो पैसे वो लोग कहाँ पे देते हैं, बाकी सारी ब्रांचेस में लोन पे देते हैं। तो इस तरीके से पूरा उनका नेटवर्क कवर होता है, राइट। तो कोई एरिया जैसे कोई बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहां पे बैंगलोर हो गया, तो वहां पे होम लोन, कार लोन सब बहुत लेते हैं, तो वहां से वो सारा उनका कवर अप होता है। चलो नाउ लेट अस चेक फॉर, ये आपके अदर ईयर्स हो गया। अब अगर आपको साथ में फाइंड करना है फॉर टी ईयर्स, ओके, क्यों? साफान इज टेलिंग सम चेंजेस हैज अकर्ड इन बैंक सर, क्यों? एंड एक मिनट स्टूडेंट्स, अब बैंक और दुनियादारी की बात से बाहर आओ और इधर आ जाओ चैप्टर पे, राइट। मैंने आपको वो समझाया था ताकि आपको ये सारी चीजें पता चले, बट आप उसमें इतना गोल गोल घूम रहे हो कि ये चैप्टर साइड पे रह जाएगा। सो अब जितना समझना था बैंक के लिए इतना समझ लिया, अभी सिर्फ क्लास 8 में हो, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे और सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए अभी चैप्टर पे फोकस करते हैं। चलो, अगर आपको टी ईयर्स के लिए फाइन करना है फॉर टाइम पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर, इसके लिए आपको फाइन करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे फाइन कर सकते हैं? PTR बाई 100। जैसे यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए फाइन करना था, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 100 इंटू 3 इंटू 10 बाई 100, सो इट इज 30। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 30 हो गया, एंड अमाउंट आपको मिल गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 100 प्लस 30, दैट इज 130। ये जो आप क्लास 7 में करके करके आते थे, ये याद है? क्लास 7 में आप इतना इतना कुछ कर चुके थे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ऐसे सारे क्वेश्चन आपने किए थे, हर क्वेश्चन के लिए आप ये फाइंड करते थे, Sir. राइट। तो सेम यहाँ पे हुआ, 3 साल के लिए 30 रुपीज आपका इंटरेस्ट, 130 टोटल अमाउंट। अब अगर यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर टी ग्रेटर देन 1 ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा उल्टा है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप पहले इंटरेस्ट फाइंड करते थे, फिर अमाउंट मिलता था। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, एंड ये फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। और जहां पे n आपका क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। टी की जगह पे हम यहाँ पे एन वर्ड यूज करते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो ये क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं। तो अब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? योर प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, 1 plus rate of interest is 10 by 100, total time period is 3 years, this is 1 plus 1 by 10। चलो 1 plus 1 by 10, 10 into 1 10 plus 1 11 by 10 लिख सकता हूँ क्विकली, राइट, क्योंकि 1 plus 1 by 10 स्टूडेंट्स, राइट। इट इज 10 into 1 10 plus 1 by 10, it is nothing but 11 by 10। इसमें पता चला एवरीवन? सो दिस इज 100 into 1331 by 1000, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सो इट इज 133.1 रुपीज अमाउंट। चेक, यही आया था हमारा अमाउंट, आया ना एवरीवन? यही आया था हमारा अमाउंट 133.1, डायरेक्टली मिल गया ये फॉर्मूला से। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको n ईयर्स के लिए फाइंड करना है, ओके। अब समझना, उसमें एक में अब कई बार आपको पूछेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूला, वहां पे आप करते थे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 133.1 माइनस प्रिंसिपल है आपका 100 रुपीज, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का मिलेगा 33.1 रुपीज। Now Tejas is telling that screen is little bit lagging. Is it so? No, sir. Okay. So Tejas, all the other students are telling that it is completely fine.
हाँ रीज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो थोड़ी देर वेट करो, हो सकता है कभी नेट इश्यूज से होता है। तो ये 2 फॉर्मूला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए याद रखनी है स्टूडेंट्स। ओके, बट डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको दे सकता था, बट मैंने आपको पहले ये सारी चीजें समझाई। क्यों समझाई, कौन से क्वेश्चन में ये काम आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। इतना क्लियर हुआ पहले एवरीवन? ओके, कि अगर आपको t ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, जिसके लिए मैंने आपको ये पूरी चीज समझाई डिटेल में, और जिसके बेस से आपको क्वेश्चंस आएंगे। कि जब आपको टाइम दिया हो, नहीं नहीं साफवान, ऐसा नहीं होगा कि 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 100 इंटू 11/10 होल टू द पावर 3, वैसा ही तो हमने किया है। बट वो एग्जैक्टली 11/10 नहीं है, वो 110/100 है साफवान। ओके, जहां पे आपका 0 0 कैंसिल हुआ है। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 0 0 कैंसिल होगा, ये समझने के लिए मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया था। अभी कई बार आपको टाइम ना मिक्स फ्रैक्शन में देंगे स्टूडेंट्स, कि आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर टाइम which is equal to 3.5 year or 4.5 year, something like that. Okay, suppose आपको यहाँ पे देंगे you have to find time for interest for 3 years plus 4 months, or 3 years and 4 months. That means your time will be in fraction. Time is given in mixed fraction. चलो वो टाइम पे कैसे फाइंड कर सकते हैं समझना। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, क्या ऐसे क्वेश्चन देखे थे आपने क्लास 7 में? टेल मी, 3 ईयर एंड 4 मंथ्स वाले, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, कैसे देखे थे? नहीं, चलो ठीक है, इधर देख लो। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में पूछ रहे हैं तो आपको सेम मेथड फॉलो करनी है, 3 इयर्स प्लस 4 मंथ्स। अब आपको 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। चलो 4 मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड आपको पता है। कितने मंथ 1 ईयर होते हैं स्टूडेंट्स? 12 months are required to make it 1 year or not? So 4 months कितना year हो जाएगा? Will it be 4 into 1, 4/12? It is 1/3. So it is 3 years plus 1/3 year, right? And if you take here LCM, 3 3s are 9 plus 1, 10/3 year. और उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR/100। ओके, इसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं। आगे का कैलकुलेशन में नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस हिंट दे रहा हूं। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो सिंपल इंटरेस्ट आप डायरेक्टली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये चीज पता चला सिंपल इंटरेस्ट के लिए एवरीवन? 3.4 0.4 नहीं है ना, वो 0.4 कब होगा? जब साल के आपके 4 मंथ जो है, टोटल 12 मंथ की जगह अगर आपके 10 मंथ हो तो वो 0.4 होगा, तो वो आपका 4/10 होके 0.4 होगा। तो 3.4 लेने की गलती ना करें एवरीवन। ओके, इट विल बी ऑलवेज 1/3, 1/3 करोगे तो 0.333 होगा। ओके, चलो अब अगर यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दे रहे हैं स्टूडेंट, समझना, अगर n आपका फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ इयर्स को n लेते हैं, सपोज वो आपका है 3 इयर्स प्लस 4 मंथ्स। तो आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ 10/3 आएगा, तो अगर मैं पावर में 10/3 रख रहा हूँ, क्या पावर में 10/3 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? एनीवन, कैन आई सिंप्लीफाई 10/3 इन पावर? कुछ तो बोलो। पावर में 10/3 है, क्या उसको जैसे यहीं पे आपको क्या मिलेगा 11/10 इंटू 10/3, क्या उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो? कैन यू फाइंड दिस वैल्यू 11/10 इंटू 10 टू द पावर 10/3? नो, 11/10 इंटू 10/3 नहीं कर सकते। तो वो टाइम पे हम कैसे करेंगे समझना, हम 3 ईयर के लिए अलग फाइंड करेंगे, 4 मंथ्स के लिए अलग फाइंड करेंगे। पहले तो 4 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? 4 मंथ्स इज 1/3 ईयर, जो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट किया है। कहां से कन्वर्ट किया? यहां से। ओके, 4/3 इज इक्वल टू 1/3 ईयर, 4 मंथ्स इक्वल टू 1/3 ईयर। 3 ईयर के लिए आप कैसे फाइंड कर सकते हो? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 टू द पावर n, आया ना?
क्या यहाँ से आपको अमाउंट मिल जाएगा 3 साल के बाद का? एवरीवन टेल मी। चलो अब आपका टेबल याद करो, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपको ये टेबल याद आना चाहिए। चलो अब मैं नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए टेबल को एक्सटेंड कर रहा हूँ। आई एम एक्सटेंडिंग दिस टेबल फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके चलो नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए अब आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? टेल मी। नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए व्हाट विल बी योर प्रिंसिपल? दिस अमाउंट और नॉट? दिस अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स और नॉट? 133.1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो आपको यहाँ पे अमाउंट मिला है वो नेक्स्ट 1/3 ईयर, दैट इज 4 मंथ्स, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज 1/3 ईयर, योर प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट और नॉट? और ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल को अलग करने के लिए मैं पी डैश नाम दे रहा हूँ। टेल मी। ओके कैन आई टेक फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स this principal or amount of last year will become principal for current year? हाँ या ना everyone? और जब आप उस साल के लिए फाइंड करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? यहाँ पे अब आपको फाइंड करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर। कैसे फाइंड कर सकते हो? सेम ना, दिस फॉर्मूला PTR/100, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। व्हाट इज द होल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? अगर ईच ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। हर साल के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बस एक चीज आपको ध्यान देनी है, अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर शुड बी प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर। अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर शुड बी प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर। तो सेम चीज तो आपने फॉलो की है। अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर इज प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर, सो नाउ दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/3 ईयर will be equal to P dash RT/100 or not? क्या वो P dash RT/100 हो जाएगा एवरीवन? हाँ या ना? ये आपको 1/3 ईयर, यहाँ पे आप T क्या रखोगे? Here your T will be 1/3 ईयर, क्योंकि इधर आप एक साल के लिए नहीं फाइंड कर रहे हो, सिर्फ 4 मंथ्स का फाइंड कर रहे हो। ओनली फॉर 1/3 ईयर यू आर फाइंडिंग, ओनली फॉर 4 मंथ्स यू आर फाइंडिंग। यू कैन टेल मी यस अगर आपको पता चला। एवरीवन पता चल रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ओके और फाइनली अगर आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम, राइट? प्रिंसिपल प्लस दिस सिंपल इंटरेस्ट। सो हियर योर टोटल अमाउंट विल बी this principal P dash plus simple interest. Yes Tejas, ask me your doubt, and yes Apura, I'll repeat, just a minute, wait. हाँ तेजस पूछो आपका डाउट। Sir, in other year, sir, you took the time as 1 year, but in 4th year you took as 1/3 year. हाँ क्योंकि क्या मैं 4th ईयर पूरे साल के लिए फाइंड कर रहा हूँ? चेक। पिछली बार मैं क्या कर रहा था? पूरे साल का फाइंड कर रहा था ना, राइट? मैं 2nd ईयर का फाइंड कर रहा था, 3rd ईयर का फाइंड कर रहा था। अभी मैं किसका फाइंड कर रहा हूँ? ओनली फॉर 4 मंथ्स। नाउ आई एम फाइंडिंग ओनली फॉर 4 मंथ्स ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, sir. That's why I have taken only 1/3 year. Okay. Yes. चलो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझना, ठीक है? ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डोंट वरी। अभी तो हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मल यहाँ से हो जाएंगे। जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला हो जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल इज नथिंग बट P। ओके, टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तब जनरली स्टूडेंट्स को शॉक लगता है, जितनी भी बार समझाता हूँ ऊपर से जाता है, तो ये मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूँ, समझना, ठीक है? आपकी स्कूल कितने बजे से है? आई विल टेक योर क्लास टिल 9:15। स्कूल कितने बजे से है? Sir, our school starts 9:15, sir. क्यों आज 9:15? 9:30 होती है ना जनरली। No, sir. Today there is some change in time. Okay. Few students are telling me 9:30. Okay, so can I take till 9:10? Or you require time for your breakfast? Okay, sir. For how many of you your school Okay, is sir. starting at 9:15 today? Raise your hand. For how many of you it is starting at 9:15 today? Raise your hand. Okay, for Rohan, Tejas, okay.
Only 2 students, Rohan and Tejas, and Pranjan. Rohan, Tejas, and Pranjan. Okay. So wait. So what I'll do, students? See, समझ रहे हैं यहाँ पे. So Rohan, Tejas, and Pranjan, since you are only 3 students, मैं आज की क्लास 9:15 तक लूंगा. आप क्या करना, अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप अभी 9 बजे क्लास मीटिंग लीव कर सकते हैं. नो इश्यू एट ऑल. यू विल बी प्रेजेंट ओनली, रोहन, तेजस एंड प्रांजन. लास्ट 15 मिनट्स आप रिकॉर्डिंग से देख लेना और जो भी ना पता चले पूछ लेना. ओके, लास्ट 15 मिनट्स आप रिकॉर्डिंग से देख लेना. नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं. ओके, रोहन, तेजस एंड प्रांजन, विल इट बी ओके? ग्रेट. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन. नाउ समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं. जब भी आपको दिया जाए स्टूडेंट्स टाइम पीरियड 3 years and 4 months, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपको ये पता है कि 12 months 1 year होता है, तो 4 months को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 4 into 1/12, दैट इज 1/3 year. Now for this 1/3 year, this is 3 years and 1/3 year, this will be 10/3 year. Okay, so simple interest is PTR by 100. आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आने वाले. आपको बस पूछेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कि 3 years और 4 months के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो. बट अगर 3 years 4 months के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे तो ये 3 + 1/3 आपका हो जाएगा 10/3 year. यू कैन नॉट सिंप्लीफाई एनी टर्म जिसके पावर में 10/3 हो. राइट, नॉट ओनली यू, अगर आप क्लास 12th में भी पहुंच जाओ, इंजीनियरिंग में भी पहुंच जाओ, 10/3 का आप खुद सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे. इट शुड रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेटर. नॉर्मल कैलकुलेटर में भी नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पावर 10/3 हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 3 year के लिए सेपरेट करेंगे, 1/3 year के लिए सेपरेट करेंगे. तो 3 year के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हर एक ईयर के लिए आप सेपरेटली फाइंड कर सकते हो, दिस दिस दिस, नहीं तो ऑलरेडी हमने देखा है कि 3 साल का हम कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली. जब भी आपको कंबाइंडली करना हो, आपके पास ये फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n. तो 3 साल का हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n. यहाँ आपको 3 साल का अमाउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए वापस करना है, तो 3 साल का जो आपको अमाउंट मिल जाएगा, इट इज नथिंग बट 133.1. यू विल गेट अमाउंट ऑफ 3 years इज 133.1. नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट विल बी योर अमाउंट आफ्टर नेक्स्ट 1/3 ईयर. ओके, तो 1/3 ईयर के लिए आप कैसे कर सकते हैं? तो नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए जो अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर था 3 years का, वो प्रिंसिपल हो जाएगा. इजंट इट? दिस विल बी योर प्रिंसिपल. एंड जब हम बाकी के ईयर्स के लिए कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2nd year, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3rd year, उसी तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट 3 months के लिए और 4 months के लिए, दैट इज 1/3 year. So what we will do, we will take this amount of previous year as principal of current year, and we will find simple interest on that particular principal for 1/3 year. Okay, for 1/3 year we are going to find, and whatever be the simple interest we are getting, after that what will be our amount total amount will be that principal plus simple interest, what we were doing for each and every year. And if you have to find compound interest for 3 year and 1/3 month, so we know that the formula is amount equal to principal plus compound interest. So compound interest will be total amount minus principal. ये total amount हो जाएगा और ये ओरिजिनल प्रिंसिपल. पता चला एवरीवन? तो ये पूरे अभी तक जितना भी मैंने समझा है उसकी समरी है. उसकी समरी आपको पूरा चार्ट बहुत अच्छे से देखना है, पूरा चार्ट बहुत अच्छे से आपको घर पे लिखना है. ओके, चार्ट आपको एक ही बार लिखना है, एंड जो फॉर्मूला है वो आपको 5 times लिखनी है. सेकंड थिंग, आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एवरी ईयर पिछले साल का अमाउंट प्रिंसिपल हो जाता है. अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर, अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर, अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर. वंस यू गेट अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर एज प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर, अब आपको अगर 3 years 5 years के लिए डायरेक्टली फाइंड करना है, यू कैन यूज फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n if you have to find for 3 years 5 years directly. But if your time is in fraction 3 years and 1/4 month, तो उसके लिए आपको अगेन ओरिजिनल कंसेप्ट पे आ जाना है. टेबल 3 years and 1/3 months. For 3 years I am having this formula, amount equal to principal 1 + r/100 to the power n. For next 1/3 year, this amount will become principal, this amount will become principal. I have to find simple interest for that particular fraction of time, 1/3 year or 1/2 year. I'll add that simple interest into principal, I'll get compound interest, or I'll get total amount. Then total amount minus original principal will give me compound interest. Right? इधर जो आपको total amount मिलेगा minus original principal will give you compound interest.
यहाँ पे भी यही किया था ना, 133.1 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, व्हाट यू गॉट 33.1 रुपीज आया ना। ओके 133.1 माइनस 100। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 3 साल का फाइंड करना है, टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। इज इट क्लियर एवरीवन? तो बस आपके दिमाग में जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, यस तेजस्वी जाके सर क्या दोनों फॉर्मूला लिखनी है? यस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फॉर्मूला लिखनी है। जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट सोचो वर्ड, आपके दिमाग में बस ये टेबल आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब अमाउंट लास्ट ईयर का हो जाएगा, प्रिंसिपल इस साल का, अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर, अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर, अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर प्रिंसिपल फॉर करंट ईयर। अगर आपको 3 साल के लिए डायरेक्टली फाइंड करना है, amount is equal to principal 1 plus r by 100 to the power n. If you have to find for 3 years and 1 by 3 months, for 3 years you can directly use this formula, amount equal to principal 1 plus r by 100 to the power n. And for next 1 by 3 year, you can apply this concept, amount equal to principal for next 1 by 3 year, and you can find simple interest on that particular amount of time, 1 by 3 year. You can add that simple interest in particular principal, or that was amount of previous year exactly, you will get a total amount. Total amount minus original principal will give you compound interest for that particular span of time. Easy? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? राइट, इतना अच्छे से ये कंसेप्ट मैंने कभी तक कोई क्लास में नहीं समझाया। ओके, दिस इज यूर द फर्स्ट बैच कि जिसमें मैंने इतना अच्छे से पहले क्लास में इतना समझाया, क्योंकि हर बार जब आपके सीनियर थे लास्ट ईयर क्लास में, उनको भी 10 बार समझाया था तब जाके समझ आया। कतर बैच में 2-3 बार समझाना पड़ा, बट आई होप कि आपको एक बार में पता चल गया है। अरे मतलब आपको भी 3 बार समझाया यहाँ पे मैंने, 3 बार, बट एक ही क्लास में पता चल गया है। आई होप सो, इजंट इट? आपके चैट बॉक्स से देख के मैं पता चल रहा हूँ, मजा आया है, अमेजिंग। ऐसे ही थोड़ी 8 वंडर है। ओके हाँ, तो ऐसे 8 वंडर नहीं है। और देख लो कोई भी जगह पे, आई बेट यू, राइट, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, कोई भी वीडियो देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट का, कोई भी जगह पे देख लो, इतना अच्छे से कोई नहीं समझाया होगा। ओके, दिस इज वेयर योर एक्सपीरियंस काउंट, कि ये आपके स्कूल में जब पढ़ाएंगे तब आप कंपेयर करना कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि क्यों ये है, राइट। तो ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस से मैंने पूरा टेबल बनाया है, ये टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, यू कैन सर्च ऑन एनी वेबसाइट, ये टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरे मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बनाया है, ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। ओके, सो आज का आपका होमवर्क ये होगा, फॉर्मूला बुक में ये टेबल आपको 1 टाइम लिखना है, राइट। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, वेट। रेगुलर बुक में आपको इन क्लास एक्सरसाइज, हाँ ये चार्ट आप फॉर्म उधर आपके दीवार पे लगा दो, मेहरबानी करके ये चार्ट, ये पूरा जो टेबल है ये आपके दीवार पे लगा दो, पेस्ट ऑन वॉल, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, आपकी पूरी एक्सरसाइज इसी पे है। ओके, पेस्ट ऑन वॉल। एंड रेगुलर बुक में आप इन क्लास एक्सरसाइज अभी मत करो, अभी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। एंड फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स करनी है। कौन कौन सी फॉर्मूला 5 टाइम्स करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको 5 टाइम्स लिखना है। तो ये पूरा का पूरा जो ये वाला पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, मैं पूरा टेबल का पोर्शन दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन पूरा 5 टाइम, ये वाला पूरा पोर्शन मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से लेके एंड तक। ओके, एंड ये वाला पोर्शन जिसमें बस ये 2 फॉर्मूला, so this 2 formula 5 times, right, this 2 formula 5 time and this portion 5 time. okay, बाकी पूरा चार्ट एक बार, ये पूरा पोर्शन मतलब पता चल रहा है स्टूडेंट्स, एवरीवन, दिस होल पोर्शन, ओके, यहां तक, this whole portion 5 times. okay, and this principal and amount, okay, जो आप अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है ये 5 टाइम्स, ओनली इतनी चीजें 5 टाइम्स लिखनी है। चलो, आर यू रेडी टू सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस नाउ? ओके, चलो देखें क्विकली एवरीवन। ओके, इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो गए आज की क्लास में, अच्छे खासे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब आपके जो टॉपिक्स बचे हैं वो है कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। सी स्टूडेंट्स, हमें सिलेबस खत्म करना है, इसलिए मुझे आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो इसीलिए मैं आपके हर रोज थोड़े 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं लूंगा तो फिर मुझे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। हाँ, मधुसूदन इज टेलिंग वी हैव क्लास एट 9:15। यस मधुसूदन, यू कैन लीव, मैंने पहले ही बोला है।
जिसका 9:15 को क्लास है वो अभी लीव कर सकते हैं, राइट? और बाकी का पोर्शन आप प्लीज रिकॉर्डिंग से देख लेना, राइट? क्योंकि मुझे 9:15 तक लेना पड़ेगा स्टूडेंट, कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ अ सम ऑफ रुपीज 10,000, सम मतलब प्रिंसिपल स्टूडेंट, ऑलवेज याद रखना, दिस इज अनदर वर्ड फॉर सम। क्योंकि लास्ट ईयर आपकी सीनियर मुझे क्लास में पूछ रही थी, सर सम मतलब यहाँ पे हम किसका सम कर रहे हैं? इट इज नॉट लाइक दैट, दिस सम इज नॉट रिप्रेजेंटिंग प्लस। सम मतलब आप जो बैंक में पैसा रख रहे हो या जो लोन ले रहे हो, सम इज अनदर वर्ड फॉर प्रिंसिपल। सो दिस प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000. So rupees 10,000 becomes 20,100. So your amount is rupees 20,100. देखो डबल से भी ज्यादा हो गया आफ्टर 5 years. 5 years में वो 10,000 आपका 20,100 हो रहा है। इफ इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड एनुअली, ये वर्ड आपको पकड़ना है। कंपाउंडेड एनुअली मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला आपको पकड़नी है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 to the power n. द कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कंपाउंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, CI. इज इट क्लियर? ओके, तो जो चीजें दी गई है उसको आप रखो यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है आपको यहाँ पे, हाँ या ना? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है यहाँ पे? टेल मी। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया। हाँ ठीक है, क्योंकि ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होता तो हम ये फॉर्मूला पे जाते। कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली आपको अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल से मिल जाएगा एवरीवन। Amount equal to principal plus compound interest. So your compound interest will be amount minus principal, implies compound interest will be 20,100 minus 10,000. So compound interest will be 10,100 or not? Tell me. Your compound interest will be 10,100. Please give me some response everyone. पता चला ये क्वेश्चन में? Okay, जिनकी स्कूल में 9:15 से क्लास है, प्लीज लीव स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दिस क्लास। राइट, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं, आप रिकॉर्डिंग से देखेंगे पता चल जाएगा, रिकॉर्डिंग तुरंत अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, जिनकी 9:15 से स्कूल की क्लास है प्लीज लीव, डोंट वरी अबाउट योर अटेंडेंस। ओके, जस्ट एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के चले जाओ। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट भी फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड अमाउंट, यू हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 20,000. Principal is rupees 20,000 for 3 years. Time period is 3 years at 8% per annum. Rate of interest is 8% per annum. Okay, so can I use this formula? Amount equal to principal 1 plus r/100 to the power n. Amount is equal to principal, that is 20,000. 1 plus rate of interest is 8 divided by 100 to the power 3. So it is equal to 20,000. अब समझना यहाँ पे 100 into 100 plus 8 divide by 100. I am taking LCM. Are you getting my point, everyone? So 20,000 into 108 by 100 whole cube. Whole cube means you have to write it 3 times. 20,000 into 108 by 100 into 108 by 100 into 108 by 100. So let us simplify this. 1 2 3 4, 4 0 कैंसल, 1 2 3 4, ये 100 लास्ट में काम आ जाएगा 2 0 डिवाइड करने के लिए। सो 108 into 2 वो आपको देगा 216। 108 into 108, ओके, जैसे आप 100 + 8 होल स्क्वायर करके यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सो a² विच इज 10,000 प्लस 2ab which is 2 into 100 into 8, 800 into 2 which is 1600, and 8 square 64. So this will give you 11664. ये इसके साथ आपको 11664 के साथ 216 को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 100। क्या ये मल्टीप्लिकेशन आप घर से कर सकते हो स्टूडेंट्स? राइट, ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपको घर से दे रहा हूँ, होमवर्क आपको मुझे बताना है, एंड अमाउंट आएगा उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये 2 चीजें मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जो इससे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ओके, नोट डाउन दैट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 3 4 6। जस्ट आप ट्राई करना, जस्ट आपको ट्राई करना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, इसमें जो भी डाउट आएगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो इन क्लास एक्सरसाइज के ही मैं आपको बस ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, और होमवर्क के आप सिमिलर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चंस ओनली। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन के आपके डाउट्स देखेंगे, एज वेल एज नया टॉपिक देखेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। So is it clear, everyone? So thank you so much once for your precious time. Bye everyone. Have a great day. See you in next class. Bye everyone.